Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing chapter 5 cash book, the weightage for which is 10 marks. Here is the question, page number 157, question number 14. Record the following transactions in cash book with cash, bank and discount columns. The transactions are given for the year 2019 for the month of April. Here is the solution. The format for 3-column cash book is date, particulars, LF, DA, which stands for discount allowed, cash rupees, bank rupees, date, particulars, LF, DR, which stands for discount received, cash rupees, bank rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and at the center of the line will be writing it as 3-column cash book. तब कैश बुक का रूल क्या है? पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे क्रेडिट में लिखना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन खरीदे वक्त या बेचे वक्त किसी इंसान का नाम आया तो नहीं लिखना, कैश और बैंक दोनों एक साथ आ गए तो काउंटर एंट्री होती, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. So the first transaction is given on 2019 April 1st as cash balance 8,000, bank balance 14,000. तो हम उसको डेबिट में बताएंगे 2019 April 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में लिखेंगे 8,000, बैंक में लिखेंगे 14,000. Then we have a transaction on April 3, issued check to Rahul 1,450, discount receive 50. Issued का मतलब हम दे रहे, तो अपने पास से पैसे जा रहे. It will be shown on credit side as 2019 April 3. किसको दे रहे? राहुल को दे रहे. So by Rahul account 1450 will be shown in bank column as we are making the payment through check. 50 rupees will be shown in discount column. Then we have a transaction on April 6, sales through net banking 2,800. Net banking का मतलब पैसे बैंक में अकाउंट में आ रहे, तो it will be shown on debit side as April 6 to sales account 2,800 will be shown in bank column. Then after April 6 we have a transaction on April 9, withdrawn cash from bank 2,900. So withdraw cash from bank, कैश और बैंक एक साथ आ गया, ना ऑफिस यूज बोला ना पर्सनल यूज बोला, तो हम उसको ऑफिस यूज अज्यूम करेंगे. सो विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, पैसे आ रहे, कहाँ से आ रहे? बैंक से आ रहे. So first it will be shown on debit side as to bank account. तो April 9 to bank account, इधर by to bank लिखे तो इधर April 9 by कैश लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे सी. इधर नाम बैंक लिखे तो अमाउंट 2,900 कैश में लिखेंगे, इधर नाम कैश लिखे तो 2,900 बैंक में लिखेंगे. Then after April 9 we have a transaction on April 11, received a check from Raju 1,450 in full settlement of his account 1,500 and check sent to bank. तो जब भी अपने को किसी से चेक आता, हम क्या चेक कर लेना, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है चेक सेंड टू बैंक, मतलब सेम डे अप्रैल 11 के दिन चेक मिल रहा और अप्रैल 11 के दिन हम चेक बैंक में भेज दिए, मतलब वी आर डिपॉजिटिंग द चेक इनटू बैंक ऑन दी सेम डे. तो अपने को पैसे आ रहे, सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड एज अप्रैल 11 टू राजू अकाउंट. कितने का चेक आ रहा? 1450 का आ रहा, जबकि राजू से आना कितने था? 1500. तो 1500 के बजाय वो बंदा फुल सेटलमेंट में 1450 दे रहा, तो डिफरेंस अमाउंट जो है वो 50 रुपीज है, वो डिस्काउंट में लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज. Then after 11 we have a transaction on April 16, purchases through debit card 2,400. Purchases का मतलब हम खरीद रहे तो पैसे जाते. It will be shown on credit side as April 16 by purchases 2,400 will be shown in bank column as we are making the payment through debit card. Then 16 के बाद we have a transaction on 19, paid cash into bank 800. तो कैश और बैंक फिर से एक साथ आ गया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो पैसा जा रहा, तो फर्स्ट क्रेडिट में लिखेंगे 19th बाई बैंक, सेम डेबिट में लिखेंगे 19th टू कैश, एलएफ में लिखेंगे सी, एलएफ में लिखेंगे सी. इधर बैंक लिखे तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 800, इधर कैश लिखे तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे 800. देन 19 के बाद वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन 24. 24 का ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज मशीनरी 4,000. मशीन खरीद रहे तो पैसे जाते हैं, इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज 24th बाई मशीनरी 4,000 रुपये कैश के कॉलम में लिखेंगे. पेमेंट कैसा करा, कुछ भी स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, तो कैश से करे समझना. देन वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन अप्रैल 26, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शेखर 350, डिस्काउंट अलाउड 50. रिसीव्ड कैश मतलब पैसे आ रहे, तो डेबिट में लिखेंगे टू शेखर, तो 26 के दिन लिखेंगे टू शेखर अकाउंट 350 रुपीज कैश के कॉलम में लिखेंगे, 50 रुपीज डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे. देन 26 के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन 28, सैलरी 650. सैलरीज पेड देता तो हम बाई सैलरीज लिखते, सैलरीज रिसीव देता तो हम टू सैलरीज लिखते, कुछ भी नहीं बोला तो हम सैलरी पे करे समझना. सो अप्रैल 28 बाई सैलरीज 650 will be shown in cash column. Then we have a last transaction for the problem on April 30, cash withdrawn from bank for personal use. So cash withdrawn from bank, कैश और बैंक दोनों एक साथ आ रहा, बट पर्सनल यूज बोल रहा, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती. पर्सनल यूज का मतलब बिजनेस का पैसा बैंक, यहाँ पे बिजनेस का पैसा निकाल रहे, जाति काम के लिए निकाल रहे, बैंक से निकाल रहे. सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी शोन इन बैंक कॉलम एज 2,300 ऑन अप्रैल 30. अभी हम इसका बैलेंसिंग करेंगे. बैलेंसिंग करने के लिए टोटल करेंगे. फर्स्ट टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम फॉलोड बाय द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम.
Then we'll be doing the total on debit side of bank column followed by the total on credit side of bank column. तो पहले कैश में डेबिट का टोटल करेंगे 8 + 2 10 10,900 11,250. So the total on debit side of bank column is 11,250. The total on credit side of the total on debit side of cash column is 11,250 and the total on credit side of cash column is 4,000 4,800 5,450. तो डेबिट का टोटल 11,250 है, क्रेडिट का टोटल 5,450 है। दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 11,250। सो दोनों तरफ 11,250 11,250 लिख देंगे। 11,250 में 11,250 में से 5,450 निकालना है। 11 में से 5 निकाले 6, 6 में से फिर और 200 निकालना है तो 5,800। तो अपने को शॉर्टेज कितने का आ रहा है? 5,800 का। उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे 5,800 और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाई बैलेंस शीट बडी एंड द डेट विल बी टेकन एज द लास्ट डे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विच इज अप्रैल 30। द सेम विल बी ब्रॉट डाउन ऑन ऑपोजिट साइड एज 2019 May 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,800। अभी हम बैंक का बैलेंसिंग करेंगे। बैंक में डेबिट का टोटल 14 + 2 16 + 1 17 फिर 18,600 19,050 rupees. The total on debit side of bank column is 19,050 rupees and the total on credit side of bank column is 2,000 3,000 4 5,000 6 7,000 7,700 8,600 9,050 रुपीज। डेबिट का टोटल 19,050 रुपीज है, क्रेडिट का टोटल 9,050 रुपीज है। दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 19,050 ज्यादा है। सो 19,050 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, 19,050 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। 19,050 में से 9,000 निकाल दिए, 9,050 निकाल दिए तो क्या बचते? 10,000। It will be shown as by balance carried down 10,000 and the date will be taken as the last day for the month of April which will be April 30. The same will be brought down on opposite side as 2019 May 1st to balance brought down 10,000। अभी हम डिस्काउंट अलाउड का टोटल करेंगे 50 + 50 100। तो डिस्काउंट अलाउड में लिखेंगे टोटल 100। फिर डिस्काउंट रिसीव का टोटल करेंगे 50। तो डिस्काउंट रिसीव के टोटल में लिखेंगे 50 रुपीज। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।